My name is Jyoti, teacher from District Udhampur. Jai Hind, dear students. Today we are going to read a new chapter from Supplementary Reader in English for class 6th. The name of the chapter is Honey and the Sting, written by Suman K. Sharma. This chapter is about a middle-aged man named Shambhunath. He never likes to get late for his office. One day, a man came to his home and offered him honey. But later, Shambhunath came to know that the honey was not free and he had to pay rupees 600 for that. While giving money, a bee stung on his forehead. Shambhunath was confused. What hurt him more? The money he had to pay for the honey or the pain that he got from the sting of the bee? तो इस तरह से बच्चों इस कहानी का जो एक मेन कैरेक्टर है वो है शंभुनाथ। तो चलिए आइए डिटेल में इस कहानी को हम पढ़ते हैं और एट द एंड तो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए लेट्स रीड द चैप्टर। Shambhunath gave himself one last look at the dressing table mirror before setting out for office. His thinning hair was in place, his puffy cheeks shone with a carefully applied Borolin, and his shirt was nicely pressed. Only his trousers had slipped down again, which made him unhappy. He detested the sight of his belly protruding from the top of his trouser. A white belt might hold the trouser in place, he thought, but it would render him poorer by rupees 200 or more. Shambhunath filed the idea in his memory for future use. इस तरह से बच्चों हमने पढ़ा कि शंभुनाथ ऑफिस में जाने से पहले उन्होंने एक बार जो ड्रेसिंग टेबल मिरर था, जो शीशा था, खड़े होकर उन्होंने अपने आप को देखा। His thinning hair was in place. उनके सर के जो बाल थे वो अब घने नहीं थे, वो पतले बाल थे और वो भी अपनी जगह पे हैं। His puffy cheeks shone with a carefully applied Borolin. और उनके जो चीक्स थे वो उभरे हुए थे और उस पर उन्होंने बोरोलिन लगाई थी तो वो भी ठीक लग रहा था। एंड हिज शर्ट वॉज नाइसली प्रेस्ड। वो जो शर्ट उन्होंने पहनी थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेस थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। ओनली हिज ट्राउजर्स हैड स्लिप्ड डाउन अगेन विच मेड हिम अनहैप्पी। सिर्फ उनका जो एक ट्राउजर था वो बार बार नीचे की तरफ चला जाता जिससे वो बहुत नाखुश थे। He detested the sight of his belly protruding from the top of his trousers. Detested means dislike. उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था जब वो ये देखते थे कि उनका जो ट्राउजर है वो उनकी बैली से नीचे की तरफ आ चुका है। Protruding means peeping out, बाहर की तरफ आना। A wide belt might hold the trousers in place, he thought. उन्होंने सोचा कि एक चौड़ी सी अगर मैं एक बेल्ट ले लूं तो मेरा ये जो ट्राउज़र है वो अपनी जगह पे टिक सकता है। बट इट वुड रेंडर हिम पुअरर बाय 250 रुपीज़ और मोर। लेकिन इसके लिए उनको 250 रुपये खर्च करने हैं। इसलिए शंभुनाथ फाइल्ड द आइडिया इन हिज मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज़। इसलिए शंभुनाथ उन्होंने सोचा कि मैं आज तो बेल्ट खरीदने वाला हूँ नहीं, फ्यूचर में फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। Just then, the doorbell rang. His wife Shruti was in the kitchen and son Anant, who had returned from the night shift at 2 o'clock in the morning, was asleep in his bedroom. Otherwise also, it was Shambhunath who answered the bell himself when at home. Muttering angrily, he strode to the door. This was the time he should have been in his office, and now this disturbance? He unbolted the inner door. On the other side of the wire-meshed steel door was a man. The youngish stranger had the suave look of a salesman. Shambhunath demurred to open the steel door. Just then, the doorbell rang. वैसे ही दरवाजे पे घंटी बजी। His wife Shruti was in the kitchen. शंभुनाथ की पत्नी किचन में थी and son Anant और उनका बेटा अनंत, who had returned from the night shift at 2 o'clock in the morning, was asleep in his bedroom.
उनका बेटा जो रात को अपना काम करके 2 बजे घर पर आया है वो अपने कमरे में सो रहा था. Otherwise, it was Shambhunath who answered the bell himself when at home. Otherwise, हमेशा अगर शंभुनाथ घर पर हैं तो वो ही दरवाजे की घंटी सुन के दरवाज़ा खोलते हैं. Muttering angrily, गुस्से से. Muttering means to speak in low voice. Muttering angrily, he strode to the door. वो दरवाजे की तरफ जाते हैं. Strode में walk. This was the time he should have been in his office. इस समय तो मुझे ऑफिस में होना चाहिए था. And now this disturbance. और इस समय इतनी ज़्यादा disturbance. He unbolted the inner door. जो अंदर का दरवाज़ा था उसको शंभुनाथ ने खोला. On the other side of the wire meshed steel door was a man. जब उन्होंने अंदर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे की दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा है. The youngish stranger had the sober look of a salesman. वो जो एक स्ट्रेंजर खड़ा था देखने में काफ़ी एलिगेंट और पोलाइट सा लग रहा था और लग रहा था कि वो कोई सेल्समैन है. Shambhunath demurred to open the steel door. Demurred mean to express disagreement. शंभुनाथ उनका मन नहीं था कि वो दरवाज़ा खोलें, लेकिन फिर भी उन्होंने दरवाजे को खोला. Good morning, sir, the man said courteously. Shambhunath stood frowning at him, his side of the door. Sir, the stranger ventured again. I am terribly sorry to have come at this hour. Actually, there is the honey I wanted you to have. What honey? Asked Shambhunath, standing behind the barred steel door. His stance had, however, softened at the mention of the honey. This morning we brought down a beehive. It has yielded a huge quantity of honey. You are a neighbor, and I thought you might like to have a portion. Shambhunath was not sure he had ever seen the young man. He glanced at his wristwatch. It was already 7 minutes past 10. He would have to wade through the traffic-clogged roads to reach his office and face the anger of the boss for being late. But there was honey to be had. तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने देखा कि जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, उसने कितने सभ्य तरीके से शंभुनाथ को विश की. लेकिन शंभुनाथ स्टूड फ्राउनिंग एट हिम, हिज साइड ऑफ द डोर. दरवाजे के दूसरी तरफ अभी भी वो गुस्से में थे. सर, द स्ट्रेंजर वेंचर्ड अगेन. स्ट्रेंजर फिर से उनको कहता है, आई एम टेरिबली सॉरी टू हैव कम एट दिस आवर. कि इस समय मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ. एक्चुअली देयर इज दिस हनी आई वॉन्टेड यू टू हैव. कि मेरे पास कुछ हनी है तो मैं आपको देना चाहता हूँ. वट हनी? कैसा शहद? आस्क्ड शंभुनाथ, standing behind the barred steel door. His stance had, however, softened at the mention of the honey. जिस स्ट्रेंजर ने हनी की बात की तो शंभुनाथ के बिहेवियर में भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस आई. This morning we brought down a beehive. Beehive means it's a type of a box people used for keeping bees. कि लोगों ने ये बॉक्स रखे होते हैं और जिसमें बीज को रखते हैं और जिसमें बी हनी बनाती है. तो this morning we brought down a beehive. It has yielded a huge quantity of money. और बहुत सारा हनी हमें मिला है. You are a neighbor. आप हमारे पड़ोसी हैं. And I thought you might like to have a portion. और मुझे लगा कि आपको भी इसका कुछ पोर्शन दे दूं. शंभुनाथ was not sure he had ever seen the young man. लेकिन शंभुनाथ उनको विश्वास नहीं हो रहा था अपने आप पे कि उनको मैंने कभी देखा है, कि वो मेरे पड़ोसी हैं. He glanced at his wristwatch. जब उन्होंने घड़ी पे देखा, इट वॉज ऑलरेडी 7 minutes past 10. कि 10:07 होने को आए हैं. ही वुड हैव टू वेड थ्रू द ट्रैफिक क्लॉग्ड रोड्स टू रीच हिज ऑफिस एंड फेस द एंगर ऑफ हिज बॉस फॉर बीइंग लेट. जब उन्होंने घड़ी पे देखा कि टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, उन्होंने सोचा कि उनको कितनी मुश्किलों से, कितनी डिफ़िकल्टी से ये जो ट्रैफिक है उसके बीच में से निकलना है और ऑफिस में पहुंचकर उनके जो बॉस हैं उनके गुस्से को भी बर्दाश्त करना है. यहाँ पे एक वर्ड आया है, वेट मीन्स टू वॉक विथ डिफिकल्टी. बट देयर वॉज हनी टू बी हैड.
He opened the gate and said in a heavy tone that he used to kick off his subordinates. Here you keep talking at my door, and I'm awfully late for my office. Now give me the honey you have brought. I'm sorry again, sir, said the other man, but you will need to have a bowl or something to carry it. Even a bucket would do. And the stranger's lips quivered in a tiny smile. Shambhunath did not notice. He hurried and stood to the kitchen and came back with a pail dangling in his hand. Shruti followed him to the door, shouting where he was going with the pail at this time of the day, but he was deaf to her query. शंभुनाथ उनको 10 बजे ऑफिस पहुंचना था, लेकिन अब तो 10:07 हो चुके थे। लेकिन अब तो बात हनी की है। He opened the gate and said in a heavy tone. इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोला, गेट खोला और भरी हुई आवाज़ में कहा, वो आवाज़ कि जो वो अपने ऑफिस वर्कर्स के लिए यूज़ करते थे जब उनको उन पर गुस्सा होता था। Here you keep talking at my door and I'm awfully late for my office. तुम यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर मुझसे बातें कर रहे हो और मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ। Now give me the honey you have brought. जो शहद तुमने मेरे लिए लाया है वो मुझे अब तुम दे दो। I am sorry again, sir, said the other man. स्ट्रेंजर ने फिर से कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, but you will need to have a bowl or something to carry it. शहद लेने के लिए तुम्हें कोई बोल या कोई चीज़ लेके आनी पड़ेगी कि जिसमें तुम शहद को डाल पाओ। Even a bucket would do. बकेट भी चलेगी, बाल्टी लेके आओगे तो वो भी चलेगा। If the stranger's lips quivered in a tiny smile. और जब उसने शंभुनाथ को ये बात कही तो उनके चेहरे पर छोटी सी एक स्माइल आई। लेकिन शंभुनाथ डिड नॉट नोटिस। शंभुनाथ ने इस स्माइल को नोटिस नहीं किया। ही हरिड इंस्टेड टू द किचन एंड केम बैक विद अ पेल डैंगलिंग इन हिज हैंड। वो जल्दी से किचन में गए और वहां से एक बर्तन लेके बाहर आए। श्रुति followed him to the door, shouting where he was going with the pail at this time of the day, but he was deaf to her query. श्रुति शंभुनाथ के पीछे पीछे दरवाजे तक आई और चिल्लाकर पूछा कि इस समय वो ये हाथ में बर्तन लिए कहाँ जा रहे हैं। लेकिन शंभुनाथ ने श्रुति के क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं समझा। इस तरह से बच्चों शंभुनाथ को समझ में आया कि स्ट्रेंजर ने किस तरह से उसको बेफूल किया है, किस तरह से उसको बुद्धू बनाया है। इट वॉज देन द रियलाइजेशन डॉन ऑन हिम। यहाँ पे एक वर्ड है रियलाइजेशन डॉन, मीन्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फैक्ट। द मैन हैड नॉट कम टू डिलीवर ए गिफ्ट एट हिज डोर स्टेप। कि जो स्ट्रेंजर था शंभुनाथ के दरवाजे पर गिफ्ट लेके नहीं आया था, रादर ही वुड हैव टू गो विद द मैन टू फेच इट। बल्कि उसको स्ट्रेंजर के साथ जाकर उस गिफ्ट को लेना है। He trudged behind the stranger to the base of a banyan tree, some distance from his home. Trudged means to walk slowly. धीरे धीरे चलना। इस तरह से शंभुनाथ उस स्ट्रेंजर के पीछे पीछे गया और वहां पे बनियन ट्री जो कि उसके घर के कुछ ही नजदीकी में था। There was a buzz of angry bees around the place. और उस जगह पर कुछ मधुमक्खियां थी जो कि बहुत ही गुस्से में दिख रही थी। Another man, his head covered with a dirty towel. एक आदमी वहां पे खड़ा था जिसने अपने सर पर एक गंदा टॉवल बांधा हुआ था। Stood guard over a tin canister half full of the prized liquid. और वहां पे एक कैन पड़ा था कि जिसके बीच में हनी था और वहां पे वो एज ए गार्ड खड़ा था। How much? This man inquired without any preamble. और ये जो आदमी वहां पे खड़ा था उसने शंभुनाथ को पूछा कि कितना चाहिए। Fill it up, if you please, replied Shambhunath nonchalantly. Nonchalantly means calm, शांति से। शंभुनाथ को अब ना कोई जल्दी थी ना कोई गुस्सा था। बहुत ही शांति से उसने उसको रिप्लाई किया fill it up, कि इसको भर दो जितना तुम इसको ऊपर तक भर सकते हो। That would be ₹600, said the man. और उस आदमी ने बोला कि 600 रुपीज देने पड़ेंगे। Handing him back the vessel brim full of the muddy brown liquid. As Shambhunath was taking money out of his wallet, a hovering bee stung him on his forehead.
शंभुनाथ जब अपनी वॉलेट में से, अपनी पॉकेट में से पैसे निकाल रहा था तो ए हॉवरिंग बी, हॉवरिंग मीन्स टू स्टे इन एयर इन वन प्लेस, कि शंभुनाथ के आगे पीछे ही एक मधुमक्खी घूम रही थी और उसने उसको उसके फोरहेड पर काट दिया। शंभुनाथ कुड नॉट जज। शंभुनाथ को समझ में ही नहीं आया, ही वॉज कन्फ्यूज्ड कि व्हाट हर्ट हिम द मोर, कि उसको ज़्यादा पेन किससे हुई है, द मनी ही हैड टू पे फॉर द हनी, जो पैसे उसको शहद के लिए देने पड़े हैं, और द बर्निंग पेन ऑफ द बी स्टिंग, या फिर जो उस मधुमक्खी ने उसको काटा है। एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सीन, और कुछ ही दूरी से जो स्ट्रेंजर था, द यंग मैन स्टूड स्माइलिंग एट द पुअर हिम, और दूर से ही उस शंभुनाथ को देखकर स्माइल कर रहा था। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कि किस तरह से जो स्ट्रेंजर था उसने शंभुनाथ को बेफूल किया। तो कि किसी पर भी हमें बहुत जल्द भरोसा नहीं करना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड नॉट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स टू क्विकली, कि जो अजनबी हैं, कि जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं, उन पे हमें कभी भी ट्रस्ट, हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वी शुड थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग डिसीजंस, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें सावधानी से और सोच समझकर डिसीजंस लेने चाहिए। Now we will do the question answers. First question, if you had to draw a sketch of Shambhunath, what type of a man would you show him to be? अगर आपको शंभुनाथ के बारे में बताना हो कि शंभुनाथ किस तरह के इंसान थे, तो आप क्या बताओगे उनके बारे में? तो जैसे तो हमने एक पूरी कहानी पढ़ी है, तो हम अच्छे से डिटेल में उनके बारे में बता सकते हैं। तो चलिए आंसर हम देखते हैं। शंभुनाथ वॉज ए मिडिल एज्ड मैन हु वर्कड इन एन ऑफिस। मिडिल एज्ड मैन थे, ऑफिस में काम करते थे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट टाइम एंड रूटीन। ऑफिस में टाइम से पहुंचना, ये उसके लिए बहुत ही वो पंक्चुअल रहते थे। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम एंड डिसलाइक डिले, और वो कभी भी ऑफिस के लिए लेट नहीं होते थे, ना ही होना चाहते थे। फिजिकली ही हैड थिन हेयर, पफी चीक्स एंड ए लार्ज बेली। उनके बाल पतले थे, चीक्स उभरी हुई थी और एक मोटा सा पेट था। ही लुक्ड सीरियस एंड डिसिप्लिन, और अगर हमको जिस तरह से हमने कहानी पढ़ी है, तो पढ़ के हमें पता चलता है कि वो शायद सीरियस होंगे देखने में, और डिसिप्लिन तो उनकी लाइफ में था ही था। बाय नेचर ही वॉज इम्पेशेंट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड। सब्र नहीं था उनमें, इम्पेशेंट थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, क्योंकि जब सुबह हनी सेलर उनके दरवाजे पर हनी बेचने के लिए आया तो वो काफ़ी इरिटेट हुए, क्योंकि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे, और वो ऑफिस के लिए लेट होना उनको अच्छा नहीं लगता था। हाउएवर ही वॉज ऑल्सो सिंपल एंड इनोसेंट। काफ़ी साधारण थे, इनोसेंट थे, बिल्कुल भी कनिंग नहीं थे, चालाक नहीं थे। द क्लेवर हनी सेलर ईजली ट्रैप्ड हिम इनटू बाइंग मनी। वो जो स्ट्रेंजर था वो काफ़ी क्लेवर था, चालाक था। उसने बड़ी आसानी से शंभुनाथ को ट्रैप किया अपने प्लान में, क्योंकि व्हेन ही स्टार्टेड द कन्वर्सेशन, जब उसने बातचीत शुरू की तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये जो स्ट्रेंजर है वो हनी सेलर है। ऐसा उसने शंभुनाथ को बताया कि वो तो उनका नेबर है। तो बड़ी चालाकी से शंभुनाथ को उसने अपने प्लान में ट्रैप किया और उसको हनी को बेचा। दिस शोज दैट शंभुनाथ वॉज नॉट वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद स्ट्रेंजर। और ये सब देखकर हम कह सकते हैं कि जो शंभुनाथ हैं, अजनबी लोगों से मिलने जुलने में उन्होंने शायद सावधानी नहीं दिखाई होगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये जो स्टोरी हमने पढ़ी है, तो हम कह सकते हैं इनके अगर स्केच की बात करें कि ये किस तरह के थे, शॉर्ट में बता सकते हैं कि शंभुनाथ वॉज अ फैट मिडल एज्ड मैन, wearing office clothes, looking serious and hurried, carrying a bucket for honey, and later standing confused and upset.
ऑब्वियसली एंड में जो शंभुनाथ थे वो काफ़ी कंफ्यूज्ड सिचुएशन में थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इतना जो पेन उनको हुआ है वो किस वजह से हुआ है, कि ये जो पैसा है वो खोने की वजह से हुआ कि या फिर वो जो बी थी उसने उनको मतलब काटा। क्वेश्चन नंबर 2, why do you think the young man standing at a distance smiles at Shambhunath at the end of the story? अंत में ऐसा क्यों लगा कि वो जो स्ट्रेंजर था वो शंभुनाथ पर हंस रहा था? Detailed answer. At the end of the story, the young man smiles because his plan has succeeded. वो इसलिए शंभुनाथ पर हंस रहा था क्योंकि वह अपने प्लान में सफल रहा। He cleverly convinced शंभुनाथ to take the honey. उसने बड़ी चालाकी से शंभुनाथ का विश्वास जीतकर उसको अपना हनी बेच दिया। At first, he made it seem as if he was giving honey freely. शुरू में तो ऐसा लगा कि जैसे वो उसको हनी फ्री में देगा, बट लेटर ही डिमांडेड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर इट। लेकिन बाद में उसने उससे हनी के बदले पैसे मांगे। Shambhunath, who was already confused and in a hurry, had no choice but to pay rupees 600. शंभुनाथ आखिरकार वो लास्ट में काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गए, अपसेट हो गए, उन्हें समझ में ही नहीं आया कुछ भी, और अंत में उनको हनी के बदले उनको 600 रुपीज़ देना पड़ा। एट द सेम टाइम अ बी स्टंग हिम। और जिस समय शंभुनाथ ने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और देने ही लगे, एक मधुमक्खी आई और उसने उन्हें काट दिया। द यंग मैन एंजॉयड सीइंग शंभुनाथ शॉक्ड, एंग्री एंड हेल्पलेस। और वो जो यंग मैन था, स्ट्रेंजर था, उसको बहुत खुशी हुई ये देख कर कि शंभुनाथ शॉक्ड। ऑब्वियसली शंभुनाथ के लिए एक शॉकिंग सिचुएशन थी, क्योंकि उनको नहीं पता था, स्टार्ट में शुरुआत में यही कहा गया था कि वो उनके पड़ोसी हैं। उन्हें नहीं पता था कि हनी के बदले उनको पैसे देने हैं और वो स्ट्रेंजर एक हनी सेलर है। एंग्री, गुस्सा भी था उनको, क्योंकि उनको चलकर अपने घर से उठकर कुछ दूरी पर आके हनी लेना पड़ा, और जो कि एक उनके लिए एक प्लान बनाया गया था, उनको उसमें ट्रैप किया गया। एंड हेल्पलेस, एट द एंड जब सारी बात हो गई तो उनको उसके लिए पैसे देने ही पड़े, ना वो मना कर सकते थे ना ही वो छोड़ सकते थे। His smile showed that he felt proud of his trick and was amused by the situation. और दूर खड़ा वो स्ट्रेंजर, उनकी स्माइल से ये लग रहा था कि उनको अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि वे अपने प्लान में सफल रहे, और साथ में वो उस सिचुएशन का बहुत ही मज़ा ले रहे थे। द स्माइल आल्सो एड ह्यूमर टू द स्टोरी बिकॉज शंभुनाथ सफर्ड बोथ। और इस स्माइल में ह्यूमर भी छिपा हुआ था, क्योंकि जो शंभुनाथ थे हर तरीके से उन्होंने ही सफ़र किया। फर्स्ट द पेन ऑफ द बी स्टिंग, एक तो मधुमक्खी ने उनको काटा, और दूसरा द पेन ऑफ द लूजिंग मनी, और जो उनके पैसे जो वो नहीं देना चाहते थे वो उनको देने पड़े। क्योंकि एट द स्टार्ट जब हमने देखा कि जब उन्होंने बेल्ट लेने की बात सोची, लेकिन जब उन्हें पता चला कि 250 रुपया देना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं, फ्यूचर में फिर कभी सोचूंगा और बेल्ट लूँगा। लेकिन ये जो एक प्लान बनाया गया था जिसमें उनको ट्रैप किया गया, और उन्होंने 600 लूज़ करने की बात कभी सोची ही नहीं थी, लेकिन एक स्ट्रेंजर ने, एक हनी सेलर ने एक प्लान बनाकर उनको ट्रैप किया और उनसे पैसे लिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो स्टोरी थी काफ़ी मज़ा आया इसको पढ़ने में, और मैंने इसको एंजॉय किया, और आप बच्चों ने भी इसको एंजॉय किया होगा। तो एक बार फिर से आप लोग इस स्टोरी को पढ़िए और इसका आनंद उठाइए। जय हिंद।